নমস্কার সকলকে। এর আগের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম যেখানে যে আইসিএ প্রতিস্থাপনা দিবস, যেখানে আমাদের সমস্ত প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত প্রেসিডেন্ট আইসিএ বা আরও অনেক অনেক মিনিস্টার স্থাপনা দিবসের জন্য তাদেরকে কনগ্র্যাচুলেট করেছিলেন, অভিবাদন দিয়েছিলেন, তাদের দেশের পিলার বলেছিলেন অর্থনীতির তার একটা। তো আমি দেখিয়েছিলাম যে সিএর মানে যদি আপনি কমপ্লেনও করেন কিভাবে আপনাকে তাহলে ফিস পে করতে হবে, বা তারা কি কত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেয়, কি সত্যি আদৌ কি অ্যাকশন নেয় কি নেয় না, এইসব বিষয়। তো আমি সেদিন হয়তো পুরো ক্লিপটা দেখাতে পারিনি, যে সেদিন স্থাপনা দিবস মানে 1 জুলাই 2017-এর প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী বা কী ভাষণ পুরো কথা বলেছিলেন। তো আজ সেই ক্লিপটা দেখাচ্ছি আপনাকে। দেখুন, শুনুন ভিডিওটার মধ্যে এখানে কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার দেশে। एक कर यानी एक नए भारत का निर्माण सबसे बड़ा कर सुधार। सी हेगड़े से हमारा निवेदन है कि कृपया जाने य एष सुप्तेषु जागृति य एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शितः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता। Good evening, everyone, and very happy CA Day to all of you. Our chief guest, Honorable Union Finance Minister, is expected very shortly, but in order to save time, we are commencing program. So, our chief guest of the panel discussion, Honorable Union Minister for Finance, Defence and Corporate Affairs, Shri Arun Jaitley ji in absentia, is joining us very shortly. Honorable Revenue Secretary Dr. Hasmukh Adhia ji, our panelists, a lead panelist comprising of Dr. Ajit Ranade, Mr. S. Ganesan, Mr. Vinayak Chatterjee, and Mr. Parveen Khandelwal is also expected to join very shortly. Dignitaries on the dais and off the dais. First of all, to all my member colleagues and student colleagues, wish you a very, very happy CA Day. Today is a great day for the profession. My sincere thanks to all of you from the bottom of my heart for such a fantastic response in just a few days. So huge hats off to all of you. My sincere apologies to each one of you who has gone through any bit of inconvenience. You can understand this is a program where our Honorable Prime Minister is coming, and I hope you will take that inconvenience in the larger interest of the security of our Prime Minister, which is absolutely dear to us. Is it okay? Thank you. I'm going to speak again, so right now I'll restrict myself to the GST initiatives of the Institute. Under the able leadership of our Indirect Tax Committee, led by Chairman Madhurkar Khinikanji, who is the Chairman of the committee, we have had tremendous work done in GST. Starting with the suggestions, not now, from 2015 onwards we have been giving suggestions.
When the draft law came, we gave suggestions. Many of them were accepted. Even when the final act has come, we have given suggestions and hope that they will be considered. We have gone all out to do knowledge dissemination for this gigantic tax reform, historic tax reform which has happened. I'm very happy to inform you that till 30th June, we have done more than 2,000 workshops, seminars, and conferences covering more than 130,000 participants. I think it must be a record in itself. But through our partnership, let us smoothen the implementation, let us remove the difficulties to all, including the government, to the business, to the industry. Let's partner. As is our tagline, we are the partners in nation building. Let's take this challenge as an opportunity to be the partner in nation building. Thank you. में हृदय से स्वागत है माननीय। आपकी उपस्थिति हम सबका उत्साहवर्धन कर रही है। माननीय, हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी ये भेंट स्वीकार करें। बुके नहीं, बुक। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर विराजमान गण्यमान्य अतिथियों से भी निवेदन है कि कृपया वे भी इस शुभ कार्य में सम्मिलित हों। सभी सीसीएम से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से निवेदन है कि कृपया दीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। राष्ट्र की ध्वजा सवार कर धरा निखार दें, राष्ट्र की ध्वजा सवार कर धरा निखार दें, रोशनी समेट कर समूचे तम को मार दें। माननीय वित्त मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ एक परिपाटी रही है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, मणिदीप प्रज्वलित किया जाता है। कहते हैं इससे ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं, माहौल ईश्वरीय हो जाता है। हमारे यहाँ एक प्रार्थना भी है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जिसका मतलब होता है असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधेरे से उजाले की ओर ले चल। और जीएसटी की रोशनी ने समूचे देश को रोशन किया है, देश के भविष्य को रोशन किया है। उसी के प्रतीक स्वरूप ये दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकाश स्तंभ स्थापित किया है भविष्य की राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आज जो हमारा ये मंच है वो गैलेक्सी की तरह चमक रहा है, क्योंकि विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आज के पैनल डिस्कशन का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इकोनॉमी, जीएसटी प्रोफेशनल एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव। ये आज के पैनल का टॉपिक है। नमस्कार। देखिए, एक सुखद संजोग है कि 1 जुलाई को सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का फाउंडेशन डे नहीं है। आज के बाद 1 जुलाई से जीएसटी डे भी मनाया जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात होगी, आगे के सालों में आप सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट डे नहीं मनाएंगे बल्कि जीएसटी डे भी मनाएंगे। दूसरी बात आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि कोई भी टैक्स व्यवस्था तभी कामयाब होती है
जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें पूरी तरह से सहयोग करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुड एंड सिंपल टैक्स कहा है, उसकी कामयाबी में आप सभी की बहुत अहम भूमिका होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इस स्टेडियम में बैठे हुए मित्रों, सबसे पहले मैं आज इंस्टीट्यूट का फाउंडर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे अपने राजनीतिक अनुभव में ये दूसरा अवसर है। पहला एनडीए की पहली सरकार में भी कुछ समय के लिए था कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के माध्यम से संबंध रखने का अवसर मिला था। लेकिन इस बार जो आपकी सक्रियता, एक्टिविज्म रही, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के स्थान पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से ज्यादा रही। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब हम लोगों ने आईडीएस स्कीम लागू की थी और उसको लेकर बहुत विवाद थे, कुछ लोग मानते थे कि सफल होगी, नहीं होगी, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी ओर से देश भर में लगभग अनगिनत कार्यक्रम किए और उनके माध्यम से ये कोशिश की कि जिन असेसीज और लिटिगेंट्स के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका संबंध है, वो आकर डिक्लेरेशन शुरू करें। मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा इंस्टीट्यूट की कि सरकार का पिछले 2-3 वर्षों से ये बहुत बड़ा एम्फसिस रहा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करें। और जो अभी सवाल पूछा गया कि इस देश के लिए ये नई यात्रा क्यों है, आज अगर हम ये एनालिसिस कर ले कि हम कहां और किस मोड़ पे खड़े हैं, ये पहली बार इतिहास ने हमें अवसर दिया है कि जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, बिना हिंदुस्तान को छुए हुए चली गई। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यूरोप में उसका असर पड़ा। वो एक प्रकार से डेवलप्ड क्षेत्र दुनिया का बन गया। टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये वो देश थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया और एशियन रीजन में ये डेवलप्ड इकोनॉमीज बन गए। तीसरा अवसर 1980s, 90s में आया कि कुछ इकोनॉमीज ने, चाइना ने विशेष रूप से, एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक गुण हासिल कर लिया। वो क्रांति भी हिंदुस्तान को छुए बगैर निकल गई। तो आज अगर मैं कहूं
रूरल इकोनॉमी में पैसा डालना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, नेशनल सिक्योरिटी में डालना, तो ये पैसा आएगा कहां से? पैसा इकट्ठा करने का तो सरकार के पास एक साधन है, टैक्सेशन। और इस सभाघर में बैठे हुए लोग आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जितनी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है टैक्सेशन इकट्ठा करने की, हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी व्यवस्थाओं में एक प्रक्रिया बन चुकी थी कि जिसमें टैक्स कैसे न और क्यों ना दिया जाए, इसके हम तरीके ढूंढते थे। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 70 साल इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो व्यवस्था चली है, उससे ज्यादा विचित्र व्यवस्था जो कि उस इवेजन को इंसेंटिवाइज करती थी, ऐसी नहीं थी। पूरे देश में केंद्र में अलग टैक्स, राज्यों में अलग टैक्स, हर स्टेट में अलग टैक्स। तो जीएसटी का आइडिया इसी में से पैदा हुआ कि पूरे देश की कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में केवल एक टैक्स हो। उस टैक्स में जितनी कमजोरियां पुराने टैक्स में थी, उसको हम दूर करें। कोई वेरिंग रेट नहीं होंगे, कोई भी सामान पूरे देश में जा सकता है, कोई नाके नहीं होंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा। जो आपने इंटरिम स्टेज पे टैक्स दे दिया, फाइनल आउटपुट पे आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कई बार हमारे समाज में एक जो अभ्यास पड़ गया कि टैक्स न देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जब हमने 1% सोने गोल्ड पे लगाया टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। अब जीएसटी काउंसिल ने कहा 3% कर दो, तो उन्हीं लोगों ने पूरे देश में हमारा स्वागत कर दिया। क्योंकि इस बीच में चाहे 6 महीने भी नहीं बीते थे, एक माइंडसेट में परिवर्तन आया कि अब देना पड़ेगा। मैंने इसको डीमोनेटाइजेशन के समय एक कहा था कि इंडिया नाउ नीड्स टू डिफाइन द न्यू नॉर्मल, एंड द न्यू नॉर्मल इज दैट आई मस्ट पे वॉट एवर टैक्सेशन इज टू बी पेड। और एक बार मुझे ये आदत पड़ जाए, हम लोग जब कल्पना करते हैं, मैंने बजट में कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेशन में 130 करोड़ के देश में 5 लाख से ज्यादा इनकम दिखलाने वाले 78 लाख लोग हैं, 78 लाख, जिसमें से 61 लाख सैलरीड लोग हैं। यानी कि जो सारा यूनिवर्स है, जिसमें वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सब आते हैं, 130 करोड़ के देश में 17 लाख लोग। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जितने ये 17 कानून गए, इसमें से जो 3 बड़े कानून हैं, सर्विस टैक्स, वीएटी और एक्साइज ड्यूटी, उसमें कुल मिलाकर 80 लाख लोग थे जो रजिस्टर्ड थे, यानी 1% से कम, आधा परसेंट, यानी 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो कौन सा वर्ग है जिससे हम डील कर रहे हैं? दिस इज द टॉप 1% इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी, और दैट टॉप 1% in a country where IT has dominated the world should say कि भाई मुझे कंप्यूटर क्रैकल करना नहीं आता, इसलिए ये टैक्स मत लगाओ।
We are dealing with the top 1%. And the argument is, what will those who don't know how to operate the software do? Now, at least in a country which is dominating the world over in software, the top 1% should have the wherewithal. और जो उनमें भी बहुत छोटे हैं, 20 लाख तक वाले, उनको एग्जेम्प्ट किया गया, 75 लाख वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी, और उससे जो बड़े हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, थोड़ा देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ कर दें, देश के विकास के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, टैक्सेशन तो उसके लिए जाता है। और ये तर्क देना कि भाई पहले नहीं था, कोई व्यक्ति, कोई कमोडिटी, कोई ट्रेड सेक्शन इसको अपना फंडामेंटल राइट नहीं मान सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मुझ पे कभी नहीं लगेगा। ये माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा, अब नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है, तो हम लोगों की जो एटीट्यूड्स भी हैं, जो माइंडसेट भी है, इट्स अबाउट टाइम दैट दैट माइंडसेट आल्सो बिकेम द माइंडसेट फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी। मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि एक बार डायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बनेगा, तो उस डायरेक्ट टैक्सेशन के बेस बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बढ़ने से डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी उसका एक असर पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं खास तौर के इसलिए बधाई दूंगा और आपका अभिनंदन करूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन के नाते आईडीएस से लेकर अभी तक जीएसटी के संबंध में भी जो पूरे देश में आप लोगों ने कैंपेन चलाया है, उसमें पब्लिक ओपिनियन को पॉजिटिव रखना, किसी भी इकोनॉमिक सुधार को करने के लिए आवश्यकता होती है कि सरकार का डायरेक्शन, दिशा ठीक हो। आधे अधूरे रवैये से कोई रिफॉर्म नहीं होता। गवर्नमेंट्स हु ब्लिंक आर नेवर एबल टू रिफॉर्म। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में कई बार हम लोगों को कठिन निर्णय करने पड़े, और एक सरकार की क्षमता थी कि सरकार निर्णय करते समय घबराती नहीं थी, और उसका एक प्रत्यक्ष असर हुआ कि एक के बाद एक हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनती गई। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे कदम लिए जाते हैं इस देश को मजबूत करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो रवैया अपनाया है, उसी दिशा में रवैया अपनाएगी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मैं भी इस मौके पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। क्योंकि जो सफ़र की शिशिर बात कर रहे हैं, उस सफ़र में ये इंस्टीट्यूट और उनके सदस्य हमेशा हमारे साथ रहे हैं। जब जब हमने जीएसटी का लॉ या रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुझाव हमको इंस्टीट्यूट की और उनके सदस्यों की तरफ से ही मिला है। एक तरह से कहे तो ये लॉ और रूल्स बनाने में उनका बड़ा योगदान है, तो उसको मैं यहाँ एक्नॉलेज करता हूँ, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। जीएसटी की सफ़र तय करने में हमको समय इसलिए न लगा और अच्छी तरह से ये सफ़र तय हो गई, क्योंकि एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति हमारे पीछे थी।
तो अधिकारियों के लिए ये डिफ़िकल्ट काम नहीं था कि जब राजकीय इच्छा शक्ति थी तो हमने तुरंत अपनी टीम को साथ लेके सबने काम बांट के, सबने काम मिल के, कंधे से कंधा मिला के हम समय के अंदर ये काम पूरा कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ट्रेड और इंडस्ट्री से आगे थी और ट्रेड और इंडस्ट्री ये कह रहे थे कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। And we are going to also make a GST kit which will be available for the whole of India, not only for the chartered accountants. Other than this, we have got certificate courses, which are in-depth courses, which are already running, which we want to increase and take it further. Since President has already told all of you what initiatives we have taken, I think I will stop with that and give more time to the other panelists. Thank you very much. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सब इंस्टीट्यूट को मैं बधाई देता हूं कि नेशनल सीए डे पे जीएसटी रोल आउट हो चुका है। एंड दूसरा आपको मैं बताऊं कि आज 1 जुलाई को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है और उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा हक है और वो मिलके ही मुझे मिलके ही रहेगा। जीएसटी का जो टैक्स रिफॉर्म है उस स्वराज को ज़्यादा मजबूत बनाता है। इट मेक्स आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर। We are a very large economy, but our tax to GDP ratio is among the lowest among our peers. I think this tax reform will go a long way to correcting that situation. Secondly, it is a big positive step for Make in India because it creates a unified, unfragmented, all India market for entrepreneurs. There is no interstate friction. And the third is that the tax reform collapses some 1,800 different rates and slabs into just 6. Ideally, we should go from 6 to maybe 3. जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में मैं इतना कहूँगा कि सारे देश में कल रात से ये कानून लागू हो गया है और जीएसटी की एक व्यवस्था पूरे देश में इस्टेब्लिश हो गई है। हम लोग पहले दिन से ही प्रयास कर रहे थे कि जम्मू और कश्मीर भी जीएसटी चेन का एक अंग बने। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी चलेगा। मेक इन इंडिया की मशाल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से और भी रोशन किया है। Our Section 8 company is one of the first licensee for the Insolvency Professional Agency, and also we are supporting the government on the Companies Act by various suggestions. Honorable sirs, our examinations are one of the most challenging courses, not only of India, across the world, and our examination systems. This is for you, my students. We are having the most robust examination system, which is time-tested since decades. The accounting reforms, we are a strong proponent of accounting reforms. We are helping the Indian Railways convert their accounts from cash to accrual. Once that is done, in about a year's time, I think much more we can do in the government sector on the cash to accrual system, which will lead to better financial management, informed and improved decision making, especially for the bodies, especially on the outcome-based budgeting, and very, very effective utilization of our national resources. As far as standards are concerned, today India is at par with the world. We have converged with the IFRS standards from 1st April 16. We have got 40 IFRS converged standards called Ind AS, and our auditing standards are benchmarked to the international auditing standards. There's no difference except small convergences which we have decided. And we as an institute are facilitating the adoption and implementation of these standards. Our continuing professional education also very, very robust. Huge amount of programs all across the country for training the members on a continuing basis. Father of our nation, Mahatma Gandhi ji said, the future depends on what we do in the present. And also there is a saying that nothing endures but change. Taking inspiration from these words of wisdom, we commit ourselves to the nation, to the national agenda of change for the better. The Institute and the Indian accountancy profession pledges its proactive support to the ongoing push for reforms, good governance, ease for doing business, simplified tax regime, and financial discipline and fiscal prudence. Sir, together we can script a glorious future for India. Jai Hind. First of all, I have a request to make to the Institute.
there is a big information gap between the traders and small-scale industries and the GST law. So one specific suggestion I would like to make to the institute is that if some of those charter accountants who are serving in various parts of the country, if they can give us a feedback on which are the most frequently asked questions about which people want to know, then we will be able to address these questions either through a press note or through frequently asked questions published in the newspaper. So my suggestion is that let all the charter accountants collect some questions on which people want to know more about it, so that we can do wide publicity of the replies to these questions. I'm sure this is a service which you can give to the government and will be immensely benefited by that. Having said that, there are a couple of issues on which people want guidance. And through the charter accountant brothers and sisters, we want to give that guidance. I just want to thank all of you for helping us in the GST mission. Thank you very much. Thank you. Thank you. कि देश की राजनीतिक व्यवस्था से आरंभ होता था और नीचे तक जाता था भ्रष्टाचार। और लोग कहते थे कि देश में भ्रष्टाचार अगर समाप्त करना है तो पहले राजनीति से करो। राजनीति में भ्रष्टाचार इसलिए होता था कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और पॉलिटिकल फंडिंग का कोई एक ट्रांसपेरेंट साधन नहीं है, और सरकार के पास जो अधिकार रहते थे, डिस्क्रिशंस रहती थी, वो डिस्क्रिशंस हमने स्पेक्ट्रम एलोकेशन में देखी, कोल ब्लॉक एलोकेशन में देखी, मिनरल्स में देखी। तो सरकार में मोदी जी का सबसे पहले आग्रह था कि इन तमाम डिस्क्रिशंस को समाप्त कर दो और मार्केट मैकेनिज्म के साथ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को जोड़ दो। उसका असर यह हुआ कि आज सरकार से फेवर मांगने के लिए कोई नहीं आता, उसको अपने लैपटॉप के ऊपर बैठकर केवल बिडिंग करनी है और प्राइस बिडिंग करनी है। पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश के सामने। आप सबका और सीए इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत अभिनंदन। और अगले वर्ष जब आप अपना सीए इंस्टीट्यूट का एनुअल डे मनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो जीएसटी डे भी होगा। उसी दिन जीएसटी आरंभ हुआ, ये एक कोइंसिडेंस बना है। एक बार फिर इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्षण आप लोग प्रतीक्षा करेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ मिनट में ही यहाँ पर आने वाले हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। The current economic environment poses many serious issues in the financial and accounting world, and chartered accountants today have a greater role to play in advising management and users of the financial statement. As auditors of the public companies, members of the accountancy profession perform a critical function through their audit reports. A significant responsibility bestowed upon you. The cornerstone of this profession was laid in 1949 by an Act of Parliament with the establishment of a statutory body called the Institute of Chartered Accountants of India, or the ICAI. ICAI का जो मोटो है, वो मोटो है या एषः सुप्तेषु जागति। सोते हुए लोगों के बीच
जो जागता है। मित्रों, आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसकी ओर आप आगे बढ़। এতক্ষণ যেগুলো দেখলেন সবগুলো আমাদের মিনিস্টারদের, অরুণ জেটলি স্যার বা সি ইনস্টিটিউটদের প্রেসিডেন্ট, এদের সবার ভাষণ বক্তব্য শুনলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার, উনি এবার জয়েন করবেন। তো উনিও দেখুন কি বলেছেন, এখানে কত কেসেস ফাইলিং হয়েছে সিএদের এগেনস্টে, সিএরা কী কী কাজ করেছে বা সিএরাও করাপশন করে কি না, সিএরা হেল্প করে কি না, সিএদের এগেনস্টে অ্যাকশন নেওয়া হয় কি না, এইসব ব্যাপারগুলো বলবে। তো ভিডিওটা অনেক লেন্দি প্রোগ্রামটা, সেটার মধ্যে থেকে চেষ্টা করলাম যতটা কম করে ক্লিপ আর কি নেওয়া যায়। দেখুন আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের ভাষণ, আশা করি এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে আপনারও। कदम कदम बढ़ाए जा, विकास को फैलाए जा, ये जिंदगी है देश की, तो देश को बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। कदम 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 बढ़ाए जा, कदम 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 कदम। कदम कदम बढ़ाए जा, विकास को फैलाए जा, ये जिंदगी है देश की, तो देश को बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना, राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। देशवासियों, सरदार पटेल ने यदि राजनीतिक और भौगोलिक एकता से भारत के भाग्य को बदला, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकता से भारत भविष्य का स्वर्णिम भाग्य लिख डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी के युगांतरकारी नेतृत्व को देशवासियों का शत शत नमन। भारत को ये सौगात देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए मेरा आग्रह है सीए नीलेश विकमसी, प्रेसिडेंट आईसीएआई से, कि कृपया मंच पर पधारें। और मैं निवेदन करूंगी सीए अतुल गुप्ता, चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज, सीए मंगेश किन्नरे, वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ स्टडीज से, कि कृपया आप भी मंच पर पधारें और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। राष्ट्रभक्ति की प्रखर चेतना, माननीय प्रधानमंत्री जी शॉल, मेमेंटो और पुस्तक से, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बुके नहीं बुक। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रेसिडेंट आईसीएआई सीए नीलेश विकमसी से आग्रह करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। Dear members and students and people seeing all across the country, we at ICAI are proud to welcome Honorable Prime Minister on this historic day when GST has been launched, and also it is the launch of a new course curriculum at his very, very auspicious hands. I can only say that the launch of our CA course is of a course which is one of the toughest course at the hands of one of the strongest leaders of the world.
a course which evokes public trust at the hands of the Prime Minister, who has the trust of 125 crore Indians. A course which is for all at the hands of the Prime Minister who works for the common man. An institution which is par excellence and supports the economy at the hands of one who's leading us to be the largest economy of the world. On a day which is our foundation day, is the day which will be marked in the history as the one that transformed India on the launch of GST. Sir, today in felicitating you, the Institute is felicitating your good self, all the chief ministers from all the states, all the political parties, simultaneously at the same time, because all of you have collectively brought about the transformational change, and we compliment the entire leadership of the country at the center and the states for introducing GST, one of the most awaited, long-awaited fiscal reform. Sir, our members are working sincerely and diligently for the nation to strengthen the economy and to serve the people of India. Sir, the CA profession is with you in your mission of transforming India and making India a world leader. ICAI's 1.1 million member and students consider ourselves fortunate and wish you our heartfelt gratitude for your very, very invaluable time and presence. Sir, your presence today will keep us motivated for a long, long time to come. Thank you once again, sir. Thank you. अनुरोध करते हैं कि कृपया न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करिकुलम का शुभारंभ करें, विमोचन करें। नमस्ते। श्रीमान नीलेश विकमसे, अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI के सभी पदाधिकारी, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद के मेरे और सभी साथी बंधु, यहां और देश भर में करीब करीब 200 स्थान पर उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के सभी महानुभाव, राज्यों में उपस्थित सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, आप सबको दिल्ली में बारिश के बीच भी ये उमंग और उत्साह के साथ आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज के शुभ अवसर पर जिनका फेलिसिटेशन किया गया है, आज इस सभागृह और देश में अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग उपस्थित हैं। उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए महानुभाव, टीवी और रेडियो पर देखने और सुनने वाले सभी देशवासी, नौजवान दोस्तों, भाई और बहनों, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का स्थापना दिवस है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ये सुभग संयोग है कि आज से ही आपका स्थापना दिवस और भारत के अर्थ जगत में एक नई राह का आरंभ दिवस आज से ही भारत में जीएसटी यानी कि गुड एंड सिंपल टैक्स की शुरुआत भी हुई है। मेरे लिए ये खुशी का विषय है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर थैंक यू दोस्तों। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है नौजवानों, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के साथ अनेक वर्षों से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है। वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जैसे डॉक्टर समाज के और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वैसे ही आप पर समाज के आर्थिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। और कोई डॉक्टर नहीं होगा ऐसा जो लोगों को ये कहे कि आप फलाना खाओ, ढींकना खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, क्योंकि आप बीमार हो जाओ और मेरी आमदनी बढ़ जाए। डॉक्टर को पता है कि अगर वो बीमार होगा तो उसकी रोजी रोटी कमाई बढ़ेगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए ये करना होगा। मेरे साथियों, समाज की आर्थिक व्यवस्थाएं स्वस्थ रहें, उनमें गलत चीजों का प्रवेश ना हो, ये आप देखते हैं। आप देश के अर्थतंत्र के बड़े स्तंभ हैं और इसलिए आप सबके बीच आना मेरे लिए स्वयं के लिए भी और एक शिक्षा और दीक्षा का भी बड़ा अवसर है। दुनिया भर में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनकी समझ और बेहतरीन फाइनेंशियल स्किल्स के लिए जाना जाता है। आज मुझे अवसर मिला एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करिकुलम की शुरुआत हो
करने का, उसका ओपनिंग करने का, आपके डायनेमिक कोर्स और एग्जाम की क्रेडिबिलिटी की अलग पहचान रही है। मुझे उम्मीद है कि नया कोर्स इस प्रोफेशन में आने वाले नए लोगों की फाइनेंशियल स्किल्स को और मजबूत करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के इनोवेशन, नए नए सॉफ्टवेयर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने कभी सोचा है जिस प्रकार से धर्म और मोक्ष की चर्चा करें तो ऋषि मुनि हमको दिखते हैं, उसी की बराबरी में अर्थ जगत का कारोबार नेतृत्व आपके हाथ में है, आप उसकी बराबरी में हैं। और इसलिए अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। जितना महत्व उन ऋषि मुनियों का रहा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उतना ही महत्व मानव जीवन में, अर्थव्यवस्था में आपके मार्गदर्शन का रहता है। अर्थ का सही आचरण क्या है, कौन सा मार्ग सही है, ये दिशा दिखाने का दायित्व चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के हर छोटे मोटे व्यक्ति का है। मेरे प्यारे साथियों, जो प्यार आप मुझ पे बरसा रहे हो, जो इस प्रकार से आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, और ये आपका प्यार ही है जो मुझे आज दिल खोल करके कुछ बातें करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जितना मैं देश आगे बढ़े चाहता हूं, उतना ही आप भी देश आगे बढ़े ये चाहते हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप लोगों ने, जो पुराने अनुभवी लोग हैं, उनसे सुना होगा कि अगर किसी घर में आग लग जाए, उनकी संपत्ति पूरी जल जाए, तो कहते हैं कि वो परिवार स्वपुरुषार्थ से बहुत जल्द फिर से खड़ा हो जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उठ बैठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है। समय रहते संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, पूरा परिवार चोरी नहीं करता है। परिवार का एकाध सदस्य
परिवार के नियमों को तोड़ करके बीच बीच में से निकाल देता है, परिवार समाप्त हो जाता है। वही को सही कहने वाले मेरे साथियों, इसी तरह कोई भी देश बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश जनता जनार्दन में एक सामर्थ्य होता है, शासन व्यवस्था, जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए, तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश, वो समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता। सारे सपने टूट जाते हैं, विकास रुक जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये प्रगति को रोकने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कड़े कदम उठाए हैं। नए कानून बनाए गए हैं, पुराने कानूनों को और सख्त किया गया है। कितने ही देशों के साथ समझौते किए हैं, पुराने जो समझौते थे उसमें बदलाव किया गया है। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजा आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है भारतीयों द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। तीस साल पहले 1987 में स्विस बैंकों ने बताना शुरू किया था कि किस देश के लोग कितना पैसा वहां जमा करा रहे हैं। पिछले साल की जो रिपोर्ट अब आई है, उसके मुताबिक भारतीयों का जो पैसा वहां जमा है, उसमें नया नहीं, पुराना, उसमें 45% कमी आई है। दो 2014 से, जिस दिन आपने मुझे काम दिया, उस दिन से 2014 से ही गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था, वो और तेज हो गया है। और आपको जानकर के दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा। 2013 का स्विस बैंक का रिपोर्ट कहता है 42% इंक्रीज था, 42% वृद्धि थी। और भाइयों बहनों, अब से 2 वर्ष बाद जब स्विट्जरलैंड से रियल टाइम डाटा मिलने लगेगा, तब विदेश में काला धन जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। आपके तो ऐसे कोई क्लाइंट नहीं होंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन आपके प्रति मेरा इतना प्यार है कि कान में बता देता हूं, उनको कान में बता दीजिए।
साथियों, देश में भी एक तरफ मैं स्वच्छता अभियान को भी चला रहा हूं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में सफाई अभियान भी चला रहा हूं। इस देश में 8 नवंबर सबसे ज्यादा आपको याद है। डिमोनेटाइजेशन का फैसला भी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। और मैंने सुना है, सच है गलत है आप जाने, लेकिन मैंने सुना है कि 8 नवंबर के बाद आप लोगों को बहुत काम करना पड़ा। आप लोगों को इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा, शायद पूरी कैरियर में करने की नौबत नहीं आई। मैंने ये भी सुना कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के लोग दिवाली की छुट्टियां मनाने गए थे, होटल बुक थे, एडवांस पैसे दे दिए थे, लेकिन सब कुछ कैंसिल करके वापस आ गए। कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑफिसेज रात रात चलती थी। अब मुझे मालूम नहीं है कि वापसी के बाद आपने क्या काम किया, सही किया, गलत किया, देश के लिए किया कि क्लाइंट के लिए किया। लेकिन किया जरूर था। साथियों, काले धन के खिलाफ इस सफाई अभियान के दौरान मैं पहली बार कुछ बातें आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप उस बात की ताकत बराबर समझते हैं। सरकार ने बैंकों में जो पैसे जमा हुए उसका डाटा माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की है। लगातार डाटा माइनिंग चल रहा है, कहां से रुपये आए, कहां जमा हुए, कहां गए, कैसे गए, 8 नवंबर के बाद क्या क्या हुआ, बहुत कुछ चल रहा है। ये जो डाटा माइनिंग चला है, अभी अभी हमने किसी को पकड़ करके पूछताछ नहीं की है, सिर्फ आंकड़े का अध्ययन किया है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही कहा, आपकी देशभक्ति मेरी देशभक्ति से जरा भी कम नहीं है। लेकिन आप देखिए, 3 लाख से ज्यादा, मैं आज पहली बार ये सारी बातें बता रहा हूं, देश ये सुनकर के चौंक जाएगा। 3 लाख से ज्यादा कंपनियां, रजिस्टर्ड कंपनियां ऐसी सामने दिखाई दी है जिनकी सारी लेती देती शक के घेरे में है, सवालों के घेरे में है, उन पर सवालिया निशान लगा है।
और ये जितना माइनिंग हुआ उसमें से अभी काफी माइनिंग बाकी है। ये 3 लाख से कहां बढ़ेगा मैं कह नहीं सकता। और जब उसकी जांच शुरू की, कुछ चीजें गंभीर जिनकी पाई गई हैं। एक आंकड़ा मैं बता रहा हूं, शायद हिंदुस्तान को इस सरकार की सोच क्या है, राजनीतिक नेताओं में दम क्या है, उसका एक पहचान हो जाएगी। एक तरफ पूरी सरकार और मीडिया, व्यापारी जगत, सबका ध्यान 30 तारीख रात को 12 बजे क्या होगा उस पर था। 1 जुलाई क्या होगा उस पर था। 48 घंटे पहले 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। दोस्तों, रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। ये मामूली निर्णय नहीं है दोस्तों। राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। एक लाख से ज्यादा कंपनियों को 1 मिनट में कलम के एक झटके से खत्म करने की ताकत देशभक्ति की प्रेरणा से आती है। जिन्होंने गरीब का लूटा है, उनको गरीबों को लौटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने 37,000 से 37,000 से ज्यादा सेल कंपनियों की पहचान ऑलरेडी कर ली है। जो काले धन को छिपाना, हवाला करना, ट्रांसफर करना, पर्दे के पीछे न जाने क्या क्या करना, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कानून तोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं जानता हूं, काले धन के खिलाफ इस कार्रवाई का, फर्जी कंपनियों को खत्म करने का किसी भी राजनीतिक दल को कितना नुकसान हो सकता है, इसका मुझे पूरा पता है। लेकिन किसी न किसी ने तो देश के लिए जीना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के देश भर के मेरे साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं, स्थापना दिवस पर आया हूं। मैं आपसे एक हल्का सा सवाल भी पूछने का मन करता है मेरा। वही को सही करने का जिसके हाथ में ताकत है, डीमोनेटाइजेशन के बाद कोई तो होगा ना जिसने इन कंपनियों की मदद की होगी।
ये चोर लुटेरे ये कंपनियां किसी न किसी आर्थिक डॉक्टर के पास तो जरूर गई होगी। मुझे पूरा पता है आप में से किसी के पास नहीं आई होगी, लेकिन कहीं तो गई होगी। जिनके पास गई, क्या उन्हें उनको पहचानने की जरूरत नहीं थी क्या? और जिन्होंने ऐसे लोगों की उंगली पकड़ी हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को सहारा दिया हो, जिन्होंने ऐसे लोगों को रास्ता दिखाया हो, क्या आपके भीतर बैठे हुए ऐसे लोगों को आपने अब पहचान लेने की जरूरत है कि नहीं? उनको जरा किनारे करने की जरूरत लगती है कि नहीं लगती है? साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे देश में 2,72,000 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके साथ आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स भी, और उनकी संख्या भी करीब करीब 2 लाख के बराबर है। अगर हम सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिकुलेट असिस्टेंट्स, आपके साथ दूसरे कर्मचारी, इन सभी को जोड़ दें तो मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि ये संख्या 8 लाख से भी ज्यादा है। आपका परिवार, इस फील्ड का परिवार 8 लाख से ज्यादा है। यानी कि सिर्फ आपके प्रोफेशन में। अब मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रखता हूं, क्योंकि आप आंकड़ों से बातें जल्दी समझ लेते हैं। और समझा भी देते हैं। अनुमान है कि हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा इंजीनियर और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं। 8 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। यानी जिसे क्रीम प्रोफेशन माना जाता है, बहुत सम्मान से देखा जाता है, ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। अगर देश के तमाम शहरों में बने बड़े बड़े आलीशान घरों को भी जोड़ा जाए तो उनकी संख्या भी करोड़ों में है। इतना ही नहीं, एक आंकड़ा ये भी है कि लास्ट ईयर भारत से विदेश में घूमने फिरने वाले जाने की संख्या 2 करोड़ 18 लाख लोग विदेश में सैर करने गए थे। ये आंकड़े, अब आपको ताज्जुब होगा कि इसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे देश में सिर्फ 32 लाख 32 लाख लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सही करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं?
मेरे प्यारे साथियों, देश की कड़वी सच्चाई यही है कि ये संख्या देश में सिर्फ 32 लाख लोग अपनी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा बताते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में ज्यादातर देश में सैलरी क्लास जो है, जिनकी फिक्स आय है, सरकारी तनख्वाह निकलता है, प्राइवेट कंपनी से तनख्वाह निकलता है, इसके सिवाय देश में क्या स्थिति है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं और आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि देश में करोड़ों गाड़ियां हर वर्ष खरीदी जाती हो और फिर भी देश के खजाने में अपनी जिम्मेवारियां न भरी जाए, तो इससे बड़ा चिंता का विषय होगा। मैं और आंकड़ों के बजाय आगे अपनी बात बताते हुए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट तभी टैक्स देता है जब उसके आसपास का पूरा माहौल सकारात्मक हो, उसे ईमानदारी से टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करे। अगर वो ये देखेगा कि उसको सलाह देने वाला सच्चाई छिपाने के लिए कह रहा है, तो फिर गलत रास्ते पर चलने से वो कभी डरता नहीं है। और इसलिए गलत सलाह देने वाले ऐसे लोगों को पहचानना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आप लोग भी कठोर कदम उठाने होंगे। सीए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआर का काम आप ही करते हैं, कैरिकुलम आप ही बनाते हैं, एग्जाम आप ही कंडक्ट करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस भी आप ही बनाते हैं, और गुनहगार को सजा भी आप ही की इंस्टीट्यूशन देती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लोकतंत्र के मंदिर ने 125 करोड़ देशवासियों की संसद ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, फिर ऐसा क्या है कि पिछले 11 वर्ष में सिर्फ 25 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या सिर्फ 25 लोगों ने ही गड़बड़ की होगी? और मैंने सुना है कि आपके यहां 1400 से ज्यादा मामले कई वर्षों से लटके पड़े हुए हैं। एक एक केस का फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इतने हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए मेरे साथियों बताइए, ये चिंता का विषय है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, आजादी का आंदोलन, देश के अनेक नौजवानों ने फांसी के तख्त को अपने गले लगा लिया था। देश के कई महापुरुषों ने अपने जवानी जेलों में खपा दी थी देश की आजादी के लिए। और उस समय देश के कई प्रोफेशनल्स के जो आगे बढ़कर के इस आजादी के आंदोलन में
आगे आए थे, उसकी कमान संभाली थी। और उन सारे प्रोफेशनल्स देखे तो उसमें ज्यादातर जो वकील के वकालत करते थे, बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते थे। वो कानून जानते थे, कानून के खिलाफ, कानून के रहते हिंदुस्तान के लिए लड़ना, उसकी क्या सजा होगी उसका पूरा पता था। उसके बावजूद भी उस जमाने की पूरी वकील आलम, जिनकी वकालत अच्छी खासी चलती थी, अपनी वकालत छोड़ करके ये देश के लिए आगे आए थे। और सिर्फ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सैफुद्दीन किचलू, भुलाभाई देसाई, लाला लजपत राय, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ काटजू, अनगिनत नाम जो वकालत के प्रोफेशन में से देशभक्ति से प्रेरित होकर के देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा रहे थे। इनमें से कई दिग्गज थे जिन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भी बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी। और भाइयों बहनों, इस बात को हम नहीं भूल सकते कि इन महापुरुषों के बिना देश का इतिहास अधूरा है। साथियों, आज हमारा देश इतिहास के एक और अहम पड़ाव पर है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, देश के राजनीतिक एकीकरण के बाद, अब आज देश आर्थिक एकत्रीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। 2017 का ये वर्ष जब वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का सपना साकार हुआ है, इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। आप मेरी भावना को समझिए दोस्तों, आजादी के आंदोलन में वकील जगत के लोगों ने, वकालत करने वाले लोगों ने हिंदुस्तान के नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज उस जमाने की तरह आपको जान की बाजी लगा देने की जरूरत नहीं है। आपको जेल के शिकंजों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। यह देश आपका है। ये देश का आने वाला भविष्य आपके संतानों का भी है। और इसलिए इस नए दौर का नेतृत्व जैसे आजादी के पहले उन वकीलों ने किया था, आज आर्थिक विकास की इस यात्रा का नेतृत्व मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फौज ने करना होगा। और आप देखिए, आपसे बढ़कर आर्थिक क्षेत्र की इस ऊंचाई को पाने का रास्ता और कोई मजबूत नहीं बना सकता है। काले धन को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को, मैं फिर कहता हूं, अपने क्लाइंट्स को ईमानदारी के रास्ते पर ले चलने के लिए आपको आगे बढ़कर के कमान संभालनी होगी। साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर
देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मैं आज उस नई जिंदगी के आपको दर्शन कराना आया हूं। आपने कंपनी की उस वही पर सिग्नेचर कर दिया, बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, सरकारी अफसरों ने इसको मान लिया, कंपनी फूली फाली आगे बढ़ रही है, आप भी फूले फाले आगे बढ़ रहे हैं। बात यहां अटकती नहीं है दोस्तों। जब आप उस कंपनी के वही पर सही करते हैं और जब उस कंपनी का ब्यौरा लोगों के सामने आता है, तब कोई बुजुर्ग म्यूचुअल फंड में अपनी पेंशन का पैसा लगा देता है। कोई गरीब विधवा महिला अपने महीने भर की बचत को शेयर मार्केट में लगा देती है। जब किसी कंपनी की सही ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती, तथ्यों को छिपाया जाता है और बाद में जब भेद खुलता है तो वास्तव में वो कंपनी नहीं डूबती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गरीब विधवा की जिंदगी डूब जाती है। वो बुजुर्ग की, उस बुजुर्ग की जिंदगी तबाह हो जाती है। उसने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ आपके एक साइन पर भरोसा करके निवेश की होती है। इसलिए मेरी आपसे अपील है, आप सभी से मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आप अपने मन मंदिर में ये महसूस करते हैं कि ये भरोसा टूटा है, तो इसे फिर से बनाने के लिए आगे आइए, पहल कीजिए। 2017 जुलाई की पहली तारीख आपकी स्थापना दिवस आपको नया अवसर लेकर के आई है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ईमानदारी के उत्सव में शरीक होने के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया। अपने काम के महात्मा को समझिए, फिर उसी हिसाब से रास्ते तय करके देखिए, समाज आपको कितने गर्व से देखने लगेगा। आपको खुद को इसकी अनुभूति होगी। साथियों, टैक्स रिटर्न शब्द है उसमें। टैक्स रिटर्न शब्द के अलग अलग ओरिजिन है, लेकिन मुझे लगता है देश को जो टैक्स मिलता है वो देश के विकास के काम में आता है। यही टैक्स रिटर्न है। ये महंगाई को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। इससे किसी ऐसी महिला को जिसे गैस कनेक्शन मिलता है, जिसने पूरी जिंदगी लकड़ी पर ही खाना बनाया है, इन्हीं पैसों से किसी ऐसे बुजुर्ग को पेंशन मिलती है जिसके बच्चों ने
उसका खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। इन्हीं पैसों से नौजवान को स्कॉलरशिप मिलती है, जो दिन भर इसलिए मजदूरी करता है ताकि इवनिंग क्लास में जा सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इन्हीं पैसों से किसी बीमार गरीब को सस्ती दवा मिलती है, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। वो बीमार होने पर छुट्टी नहीं ले सकता, वो बीमारी में भी दिन भर काम करता रहता है ताकि शाम को उसके बच्चों को भूखा सोना न पड़े। टैक्स से मिला पैसा देश के बहादुर सैनिकों के काम आता है, जो सीमा पर अपने जान की परवाह न करते हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये पैसे उन घरों में बिजली पहुंचाने के लिए काम आते हैं जहां स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची उसके घरों में। आज तक कभी एक बल्ब भी नहीं जला है, वो अंधेरे में डूबे हुए हैं। देश के गरीबों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करना, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। आपकी एक सिग्नेचर देश के गरीबों की कितनी मदद कर सकती है, इसकी शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। देश के सामान्य मानवी के सपना पूरा करने में आपका बहुत बड़ा दायित्व है, आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जब आप लोग ठान लेंगे, और मुझे विश्वास है 1 जुलाई 2017 आईसीएआई के जीवन की यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट बन करके रहेगा। ये मेरी आत्मा की आवाज है। और मेरे साथियों, एक बार आप ठान लेंगे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि टैक्स चोरी करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। इंसान अपराध तभी करता है जब उसे पता होता है कि उसे कोई बचाने वाला है। साथियों, जीएसटी आपके सामने राष्ट्र निर्माण में सहयोग का एक माध्यम बनकर के आया है। आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों से बात कीजिए। और मुझे जब आ रहा था तब नीलेश मुझे बता रहे थे कि हम सभी जगह पे एक डेस्क शुरू कर रहे हैं ताकि व्यापारियों को सहायता हो, उनकी हम मदद करने वाले हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों के पास पहुंचे, उनको जागरूक करिए, ईमानदारी की मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करिए। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सरकार ने दी है। अभी से इसकी तैयारी कीजिए। खास करके मैं इस प्रोफेशनल के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं, आइए। सरकार ने पिछले दिनों जो कानून पास किए हैं, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, इसको सफल बनाने में, सही तरीके से लागू करने में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस कोड के तहत जब भी कोई कंपनी दिवालिया होगी तो उसका प्रशासनिक नियंत्रण इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के पास आने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बनकर एक इस नए क्षेत्र में अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक नया रास्ता है जो सरकार ने आपके लिए खोला है, लेकिन आज के बाद आप जो भी रास्ता चुने उसमें सीए का मतलब होना चाहिए चार्टर और एक्यूरेसी, कंप्लायंस,
और ऑथेंटिसिटी। साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। इस वर्ष के लिए देश ने कुछ संकल्प किए हैं। नया भारत हम सबके परिश्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। आप भी एक इंस्टीट्यूशन के नाते भी और एक चार्टर्ड अकाउंट व्यक्ति के नाते भी और देश के नागरिक के नाते भी 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो, हम इस देश को जैसा देखना चाहते हैं ऐसा बनाने में हम अपना योगदान दें, अपनी भूमिका निभाएं। और 2022 जब देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, उसके ठीक 2 साल के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी 75 वर्ष हो जाएंगे। आप अभी से 75 वर्ष का कार्यक्रम अभी से बनाइए और इस इंस्टीट्यूशन को, उसके कैरेक्टर को किस ऊंचाई पर ले जाना है, उस ऐतिहासिक अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अभी से अपना रोड मैप बनाइए और तय कीजिए आप देश को क्या देंगे। देश में आशा आकांक्षा लेकर के बैठे हुए कोटि कोटि नौजवानों के भविष्य के लिए क्या करेंगे? क्या आप देश को एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था देने में मदद नहीं कर सकते क्या? क्या आप ये कहेंगे, क्या हिसाब किताब ये लगाएंगे कि आपने इतने लोगों को टैक्स देने से बचाया? क्या ये हिसाब किताब होगा कि मैंने अब इतने लोगों को टैक्स दे करके ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया? फैसला आपको करना है। आपके लिए, आप अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करिए कि कितने लोगों को ईमानदारी की टैक्स चुकाने की मुख्य धारा में लाएंगे। इस लक्ष्य का आंकड़ा क्या होगा, ये आपसे बेहतर कौन बताएगा? इस बारे में सोचिए कि कैसे आप अपने प्रोफेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट के फील्ड में फॉरेंसिक साइंस का कितना बड़ा रोल हो सकता है, उसको कैसे केयर किया जाए, उसको कैसे कैटर किया जाए, इनसे जुड़े भी लक्ष्य संभव हो तो उसको तय करना चाहिए। साथियों, एक और मेरे मन में अपेक्षा है आपसे, और ये अपेक्षा इसलिए है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो ताकत आप में है, आप में वो सामर्थ्य है। क्यों आप पीछे हैं मुझे समझ नहीं आता है भाइयों। साथियों, दुनिया में 4 ऐसी बड़ी ऑडिट संस्थाएं हैं जो बेहद प्रतिष्ठित हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां और संस्थाएं अपने ऑडिट का काम देती हैं। इन कंपनियों को बिग 4 कहा जाता है। इन बिग 4 में हम कहीं नहीं हैं। आप में क्षमता भी है, योग्यता की कोई कमी नहीं है। क्या मेरे सारे साथी विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आप लक्ष्य तय कर सकते हैं कि 2022 जब आजादी के 75 साल देश बनाता होगा, तब तक बिग 4 को बिग 8 में बदल देंगे, और जो बिग 8 होंगे उसमें बिग 4 यही मेरे सामने जो लोग हैं उन्हीं में से होंगे। दोस्तों, ये सपना हम लोगों का होना चाहिए। बिग 8 में शामिल होने के लिए 4 ऐसी हमारी कंपनियां, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रोफेशनलिज्म मुश्किल काम नहीं है दोस्तों।
विश्व के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में भी आपका डंडा बजना चाहिए साथियों। आखिर में मैं आपको आपके क्षेत्र के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित अर्थशास्त्री चाणक्य की एक सलाह याद दिलाना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा है, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबति, यानी कर्तव्य का समय टल जाने के बाद समय ही उसकी सफलता को खत्म कर देता है। और इसलिए समय को, इस अवसर को हाथ से मत निकलने दीजिए। अभी कुछ देर पहले अरुण जी आपके सामने बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हिंदुस्तान के जीवन में, विश्व के अंदर ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया। आपके जीवन में भी ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया। मौका हाथ से मत जाने दीजिए दोस्तों। मैं आपको राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए निमंत्रित करने आया हूं। आप मत भूलिए कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में समाज की पूरी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का, टिकाए रखने का सर्वाधिक सामर्थ्य है। मैं एक बार फिर इंस्टीट्यूट को, उसकी फैकल्टी को और यहां उपस्थित सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आईसीएआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और देश भर में इस कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से देश के कोने कोने में और दुनिया के भी कुछ देशों में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो देख रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए 1 जुलाई 2017 नई दिशा, नई गति, नया उमंग, आओ हम चल पड़े और देश के सामान्य मानवी को एक इस ईमानदारी के उत्सव में जोड़े। इसी एक कामना के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ভিডিওটা অনেক লেন্দি হওয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। 4 ঘন্টার প্রোগ্রাম ছিল, যেখান থেকে অনেক শর্টকাট করে, অনেক কেটে কাটাকুটি করে এখানে নিয়ার অ্যাবাউট 2 আওয়ার্সের মধ্যে নিয়ে এলাম। তো অ্যাকচুয়ালি মেন দেখানোর ছিল এখানে যে দেখুন সিএদের কত কনগ্র্যাচুলেট করা হয়, কত রেসপেক্ট দেওয়া হয়। আবার প্রাইম মিনিস্টার আমাদের শেষে বলেওছেন যে এত কম কেন কেসেস ওদের এগেনস্টে ফাইল করা হয়েছে, এত কম কেন অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। 1400 কেসেস পেন্ডিং হয়ে আছে, 25টা সিএর এগেনস্টে মাত্র অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। যেখানে পার্লামেন্ট থেকে সিএদেরকে আলাদা পাওয়ার দেওয়া আছে, তারাই পানিশমেন্ট দেয়, তারাই রুল রেগুলেট করে। তো আমি এর আগেও ভিডিও বানিয়েছিলাম যেখানে সিএর এগেনস্টে আমি কমপ্লেন করেছি, কিন্তু কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। তো এটাই আমার দেখানোর ছিল যে হ্যাঁ, সিএরাও ফ্রড করে, সিএরাও মিসকন্ডাক্ট করে, সিএদের কীরকম কেসেস হয়। যে এটার জন্য আমি সব সিএদের এখনও খারাপ বলছি না, সব সিএদের সব প্রফেশনের মধ্যে কিছু এক্সেপশনস থাকে। তো আমি যেখানে আমার প্রুফ আছে আর কি, যে সিএর এগেনস্টে আমি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য বলেছিলাম, তো সেটাও নেওয়া হয়নি এখনও পর্যন্ত। বাস এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যদি কখনও কেউ চেক করেন বা আমার জানান, তাহলে আমি সেটা শো করতে পারবো। তো দেখুন, আশা করি ভিডিওটা ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল, আপনি চেক করে নিন সিএর এগেনস্টে সিএর রেপুটেশন কি। আমি নেম এখনও ডিসক্লোজ করছি না সিএর যে ফ্রড করেছে, যার ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে। তো আপনি সাবধান এইসব সিএর থেকে, মাথা উঁচু করে বাঁচুন, ট্যাক্স দিন। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ দেখার জন্য ভিডিওটা, যদিও পুরো ক্রেডিট স্যারদের। ধন্যবাদ।